चलो फिर आगे मूव ऑन करते हैं। तो एक टॉपिक और आता है, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें स्किप करा दिया था, दैट वाज रिलेटेड टू एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम। अब इसी क्वेश्चन को वो लोग वेपर डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। फाइन। तो जस्ट फॉर एग्जांपल चेक करो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले ले PCl5। ओके, तो PCl5 will go undergo dissociation and it will form what? PCl3 plus Cl2 at equilibrium. So initially if I start, क्योंकि मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इंक्लूड करना है, so tell me how many moles I should take. I want to show the relationship between average molecular weight and degree of dissociation. Tell me कितना लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? 1. ठीक है, 1 mole per liter. And what will be the amount of PCl3 and Cl2 at that moment? 0. 0 and 0. And what is the 0. molecular weight at this moment? How will you find it? Initial molecular weight कितना हो जाएगा? You Number only of have moles into you only have PCl5. So it will be equal to the molecular weight of PCl5 or not? yes, ma'am. ठीक है, now it has achieved equilibrium and supposing I am assuming alpha is the degree of dissociation. Fine. So at equilibrium, what will happen here? This will become alpha and this will become alpha. Now at equilibrium जो molecular weight होगा वो कैसे निकालेंगे? It will be average. Alpha into molecular weight of PCl3 plus alpha into molecular weight of chlorine. Average of all the 3 species, because सब कुछ यहाँ पे different way में present है. Check it out. Yes, ma'am. ठीक है. So now what is my topic? It is like we want to find one relationship between degree of dissociation and books में दिया होता है density. ठीक है, बट हम लोग इसको डेंसिटी के साथ, डेंसिटी यहाँ पे मतलब है वेपर डेंसिटी, बेसिकली यही मतलब होता है उनका, बट हम लोग इसको मॉलिक्यूलर वेट और सब चीजों का रिलेशनशिप करेंगे. बुक्स में जनरली डेंसिटी के लिए दिया जाता है, बट हम सबके लिए कर रहे हैं. फाइन. सो अगर मुझे डेंसिटी, हाँ, तो हम लोग पहले मॉलिक्यूलर वेट के लिए करते हैं. सो टेल मी हाउ इज मोल्स रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट? नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशनशिप है? Number of moles is equals to given Or weight can upon I say molecular it weight. is, yes, it is inversely related to molecular weight? Can I write like this? Yes, ma'am. तो अब हमारे पास दो कंडीशंस है, कौन कौन सी? एक इक्विलिब्रियम वाली और एक इनिशियल वाली. तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लिखूं, लाइक इफ आई वांट टू आस्क यू द मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल मोल्स, अब बोलो क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट के 2 टर्म्स upon में. 1. हाउ कम 2/1? मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में लिखो. और वैसे भी 2/1 कैसे सोच के बोल रहे हो बेटा? Initial molecular weight Initial upon molecular weight at upon Yes. molecular weight at equilibrium. Yes. Initial molecular weight upon molecular weight at equilibrium. Can I write like this? Can I write like this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So if I can write like this, so tell me what was like how many moles are there at equilibrium? Count the number of moles at equilibrium. 12. 1 plus alpha. 1 plus alpha. Yes, total moles at equilibrium will be, क्योंकि सब combination लेंगे, total moles at
equilibrium is gonna be 1 minus alpha plus alpha plus alpha. So this will be 1 plus alpha. So this will become 1 plus alpha. Initial moles कितने थे? 1. Alpha. ठीक है. So So 1 यहाँ पर initial molecular weight क्या था? P PCl5. it will be the weight of PCl5 शायद 208.5 आता है और अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे? molecular weight of the mixture. PCl. ठीक है. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अपना डिराइव हो जाएगा. जो तुम्हारी बुक में कैसा लिखा होगा वो 1 नीचे नहीं लिखते हैं, उसको हटा देते हैं and they will be simply writing it like this. 1 plus alpha is equal to this upon this. तो क्या होगा? क्वेश्चंस कैसे आएंगे? या तो अल्फा गिवन होगा, okay, either alpha will be given or average molecular weight at equilibrium will be given, okay, and they will ask you to calculate either of them. मतलब अगर अल्फा गिवन है तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकलवा लेंगे, या फिर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा तो अल्फा निकलवा लेंगे. Can you get it? How, which type of questions will be there? Can you follow which type of questions will be there? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, अब देखो इसी चीज को अगर हम लोग डेंसिटी से रिलेट करें, मतलब प्रिसाइजली वेपर डेंसिटी से रिलेट करें, तो इनिशियली व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी? What is PCl5 by 2. Yes, and what will be the vapor density at equilibrium? It will become average molecular weight divided by 2. चेक Upon करो. 2. ठीक है. तो अब इसी रिलेशनशिप को हम लोग ऐसे लिखें तो कहना है से it is inversely related to vapor density as well. Number of moles is inversely related to vapor density. ठीक है. एंड देन सपोजिंग, मतलब वो लोग नोटेशंस भी यूज करते हैं. सो सपोजिंग इसको कैपिटल डी यूज कर रहे हैं और इसको स्मॉल डी यूज कर रहे हैं. सो व्हेन आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ दिस, सो व्हाट विल आई राइट? दिस विल बिकम इनिशियल स्मॉल डी था और फाइनल शायद मैंने कैपिटल डी यूज किया है. हाँ, देखो इस वे में लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बचेगा कि नहीं? चेक एंड टेल मी. ठीक है. एंड इसको अगर अपने को यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम दिस अपॉन दिस, वेयर डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेपर डेंसिटी कौन सी? इनिशियल, एंड कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम. तो क्या तुम फिर से, या तो अल्फा गिवन होगा या तो वेपर डेंसिटी गिवन होगी. ईदर ऑफ द थिंग, कैन यू, विल यू बी एबल टू कैलकुलेट इट? एक Yes, चीज ma'am. दूसरी चीज निकालने को वो बोलेंगे. तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर पाएंगे अभी? फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे रैंडमली? yes. ठीक है, फॉर्मूला भी डिराइव हो पाएगा हम लोगों से. फाइन. तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ vapor density and all. ठीक है. So like there is a question given, right? Calculate so the question is something like the degree of dissociation of PCl5 is 66%. Find the observed मतलब वही इक्विलिब्रियम पे अचीव होने के बाद observed molar mass of mixture. Molar mass of mixture. जरा ट्राई करो. And I'm giving you, मैं तुम्हारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए इसलिए कर रही हूँ. Molecular weight of PCl5 is 206.5. करो जल्दी से. How will you do it? Moles of mixture
अपॉन क्या लिखेंगे? Initial moles. यस और इनका रिलेशनशिप इनवर्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इनिशियल जो PCl5 प्योर लिया था अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। तो मोल्स ऑफ मिक्सचर कितने बचते हैं? इस वाली इक्वेशन को मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कर करके, और अगर तुम्हें नहीं उस टाइम पे पता है तो तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो टेल मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ आर लेफ्ट ऑफ द मिक्सचर? हाउ मेनी मोल्स? Answer is 124.3. yes we are doing it, so let us check 124.3. सबका आ रहा है? ठीक है, सो इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 206.5 एंड ये अपने को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालना है एंड अल्फा परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करोगे पर वन में तो इट विल बी हाउ मच? 0.66. कन्वर्ट अल्फा फ्रॉम परसेंटेज. सो कैन यू सॉल्व दिस? अपॉन 1.6 कितना आ रहा है? 124.3. 0.3. चलो सब लोग कर पाएंगे, इजी है कैलकुलेशन. विल यू बी एबल टू डू इट? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अभी फिर से अपने आप फॉर्मूला डिराइव करना. ठीक है, यहाँ तो मैंने फॉर्मूला डिराइव करना तुम्हें बता दिया था, लेकिन अब तुम्हें अगर सपोजिंग इक्वेशन चेंज कर दी जाती है तो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला to do it yourself. So vapor density of N2O4 which dissociates as N2O4 gets converted to 2NO2 is 25.67 at pressure of 1 atmosphere. So now you have to calculate alpha. चलो निकालो, calculate alpha. ठीक है, सो देखो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया 25.67 वेपर डेंसिटी है, बट तुम खुद से सेंस लगा के बोलो ये 25.67 वेपर डेंसिटी किसकी होगी? इनिशियल या फिर इक्विलिब्रियम वाली? इनिशियल वेपर डेंसिटी होगी या इक्विलिब्रियम वाली होगी? Initial. Equilibrium. Initial. इक्विलिब्रियम. वेरी गुड. क्यों इनिशियल क्यों नहीं होगी? क्योंकि N2O4 की वेपर डेंसिटी खुद से कैलकुलेट करो कितनी आ रही होगी. N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 28 and 64 कितना हुआ? 92. 92. तो वेपर 92. डेंसिटी इनिशियल कितनी होगी? 46. 46. तो 46 नहीं है ना, ये ना ही NO2 के बराबर है. इसका मतलब जो भी डेटा गिवन होगा वो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल का तो देंगे नहीं, वो कभी भी तुम्हें देंगे या नहीं Yes, देंगे? ma'am. ठीक है, नहीं देंगे. यू कैन चेक इट योरसेल्फ. ठीक है, ये कम आ रही है. क्यों कम आ रही है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है. वो क्यों कम हो रहा है? बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग टू NO2. फाइन. तो कभी कभी वो स्पेसिफाइड नहीं होगा, कभी कभी क्या मेजॉरिटी केसेस में वो स्पेसिफाइड नहीं आता है. बट विल यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज? विल यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज? Yes, ma'am. और आयुष इज दिस पॉइंट क्लियर? मैंने 1 मोल्स क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी, हालांकि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है अपने को. Yes, Why I'm ma'am. taking, ठीक है. So total moles at equilibrium is gonna be again how much? 1 plus plus alpha. alpha. Plus alpha. Yes. यहाँ पर भी fortunately 1 plus alpha ही आ रहा है, बट अगर 1 plus alpha नहीं आ रहा होगा, 1 plus 2 alpha, 3 alpha या 1 minus alpha आएगा, तो तुम कैलकुलेट कर पाओगे फॉर्मूला? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे अपनी वेपर डेंसिटी कितनी आई थी इनिशियल? दैट वाज 46 ना. तो अब सॉल्व करो जरा एंड दिस विल बिकम 46. So can you 0.79. 0.79 or you can say approximately 80%. Can you follow the process? Can you people follow the process of solving the question? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. मैं थोड़ा सा एक और लेवल पे जा रही हूँ. सो इसी क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp.
Calculate value of Kp for the above question. Try करो जरा सब लोग and tell me the answer. Total pressure is given to you क्योंकि ये इस टाइम का प्रेशर दिया हुआ है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है. तो इसका मतलब ये कौन सा प्रेशर होगा? पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर? Total pressure. सो पार्शियल प्रेशर्स निकालो, सॉल्व करो और मुझे Kp का वैल्यू बताओ. $12.8. Okay, let us check. So see, how will I write this? How do we find partial pressure? What is the formula to do it? It will become partial pressure of NO2 का square upon partial pressure of N2O4. Have I written it correctly? देखो formula सही लिखा है. Yes, ma'am. What is partial pressure? तो इसके लिए हम लोग क्या use करेंगे? Mole fraction upon total moles into total pressure. We'll do it like this. 1 minus alpha this into total pressure. Is it written correctly? Okay, now total pressure is already 1 atmosphere. That means this can be written as like this and this can be written as like this. Is it correct? देखो ये ठीक से लिखा है. ठीक है, अब चेक करो इसको. मतलब मैं पहले ही एंड यहाँ पर क्या होने वाला है? P टोटल का स्क्वायर एंड यहाँ पे P टोटल एज इट इज. तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विथ ओनली 1 P टोटल. सो नाउ डू इट योरसेल्फ. क्या हो जाएगा? यहाँ ऊपर क्या बचेगा? 4 अल्फा स्क्वायर एंड नीचे क्या बचेगा? ये वाला और एक ये वाला कैंसिल होगा कि नहीं होगा? कुछ इस टाइप का टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Can you get the calculation? Can you Yes, ma'am. ठीक है, and 1 plus alpha and 1 minus alpha can be written as what? 1 plus 1 alpha. minus alpha square. Very good. And alpha की वैल्यू 164/9. yes 7.1. तो अभी अभी तुमने मुझे अल्फा Yes, ma'am. स्क्वायर की Yes, ma'am. वैल्यू 7.1 आ रहा है. हाँ वेरी गुड. तो 4 into अल्फा की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी. इट वाज कमिंग आउट अप्रोक्सीमेटली 0.8. सो दिस विल बिकम 0.64. 1 minus 0.64 और टोटल प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर था. आप देखो इजी हो गया कैलकुलेशन. जल्दी से सॉल्व कर लो इसे एंड आई थिंक दिस विल बी 7.1. एंड यूनिट्स. बिना यूनिट्स के तो हम नहीं कर सकते. क्या बचेंगे यूनिट्स? ATM. 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 ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर में भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज करना आया. मैम वो आपने पिछली स्लाइड में इनटू टोटल प्रेशर यूनिट्स के लिए करा है. हाँ कर लो या फिर डायरेक्टली अगर 1 एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उसको भी लेना पड़ता ना. फॉर्मूला यही है ना. यहाँ से देखो इसको स्क्वायर करोगे तो पार्शियल प्रेशर सॉरी टोटल प्रेशर का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम. ठीक है, तो फॉर्चुनेटली इट इज 1. दैट्स व्हाई आई एम नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम. बट अगर 1 नहीं होता तो मुझे उस फैक्टर को भी तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता. मैम यस मैम ये वाला एक्शन क्वेश्चन वाली स्लाइड लगा दीजिए. इसमें हम जो हमें 25.67 VD दिया हुआ है वो वैसे तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इनिशियल ये नहीं है. लेकिन मैम लॉजिक ये भी देख सकते हैं ना कि 1 ATM नॉर्मल प्रेशर है. नॉर्मल प्रेशर पे डिसोसिएट तो करेगा नहीं.
क्यों नहीं करेगा? इसीलिए ये तुम्हें किसने बोल दिया कि नॉर्मल प्रेशर पे डिसोसिएट नहीं करेगा? हाँ मतलब ये स्पेसिफिक कंपाउंड Why? मतलब what logic are you using that it will not dissociate at normal pressure? मतलब जनरल में सुना हुआ है No, it's not general. It dissociates. In general, also it dissociates. In general, also it dissociates. You'll do it in inorganic. Okay, and it is dissociating at this pressure. That's why my vapor density is changing. अगर ये compound as it is रहता तो मेरी vapor density मुझे 46 ही दिखती ना, जब अपन ने Yes, ma'am. कैलकुलेट किया। अगर मेरी वेपर डेंसिटी चेंज हुई है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है ना उसके अंदर। ठीक है, इन जनरल ऑल्सो वन मतलब प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहा लेकिन मेरी वेपर डेंसिटी चेंज हो गई, दैट मींस रिएक्शन इज अकरिंग और नॉट अकरिंग। नाउ डू इट योरसेल्फ, यूज द लॉजिक। दैट्स व्हाई आई गिव यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे बच्चे ज्यादातर इसीलिए छोड़ के चले आए थे कि भाई मिक्सचर की नहीं दी हुई है। तो अब रीजन समझ में आया एक एक? यस मैम। ठीक है, चलो। So this part is also clear. Now basically you are done with the what do you say, the numerical part majority. Now what is left is lot and lot of practice. So अब theoretical थोड़ा सा part रह गया, that is called as Lee-Chateliers principle. तो फिर से हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। तो तुम्हें मैंने एक क्लास में एग्जांपल दिया था ना, एक टॉय का, जिसको it is written knock me or something like that. वो डॉल वाला। तो उसमें वही होता है ना कि उसका जो बेस है वो हैवी रखा जाता है। अगर हम उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी करते हैं तो क्या होता है, वो वापस से अप एंड डाउन मूव कर करके क्या करता है, स्टम्बल होने के बाद में इट अगेन अचीव्स इक्विलिब्रियम। डज इट हैपन और नॉट? ये तो तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा। तो ये प्रिंसिपल भी यही बोलता है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स that when chemical equilibrium या फिर physical equilibrium भी, तो अभी हम क्योंकि chemical equilibrium की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम उसको ही कर रहे हैं, is disturbed, okay, उसको disturbance create किया, then equilibrium reaction जो होती है, मतलब equilibrium reaction जो है moves in the direction to compensate the effect। जो तुमने इफेक्ट डाला, जैसे तुमने अगर पीछे की तरफ उसको पुश किया तो वो आगे की तरफ उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है, और अगर आगे की तरफ पुश किया तो वो पीछे की तरफ जाके उस फोर्स को कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन मूव्स इन द डायरेक्शन टू कंपनसेट द इफेक्ट एंड, और उसके बाद क्या होता है, वो टॉय भी फर्दर क्या करता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, अटेन्स इक्विलिब्रियम, फिर से इक्विलिब्रियम वो वापस से अटेन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? What are the effects by which you can disturb the equilibrium? Change in the condition. Change in pressure. Yes, कौन सी condition? हाँ, very good. Change effects disturbing the equilibrium. तो क्या क्या conditions हम change कर सकते हैं, बोलो? Pressure change. Yes, क्योंकि हम gaseous equilibrium की बात कर रहे हैं ना जनरली, तो हम gaseous की क्या क्या factors change कर सकते हैं? Ma'am, temperature, pressure, volume. Temperature, there can be change in pressure, then concentration पे इफेक्ट डाल सकते हैं, then what else? कंसंट्रेशन पे इफेक्ट डाल सकते हैं। और दूसरा होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो जो चेंज इन वॉल्यूम होती है ना, वो हम लोग कैसे करते हैं, हम क्योंकि हम लोग जनरली कैसे वेसल यूज करते हैं, मतलब जो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर सकते हैं या जिनकी बाउंड्रीज कांस्टेंट रहती हैं, जनरली लैब में या डे टू डे लाइफ में हमारे जितने भी
जिनकी बाउंड्रीज एक्सपैंड नहीं कर पाती हैं। ओके तो हम लोग फिर वॉल्यूम में चेंजेस कैसे डालते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई इनर्ट सब्सटेंस, या ऐसे लिखा हुआ आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनर्ट गैस, इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनर्ट गैस। तो हम इन 4 तरीकों से क्या करते हैं, अपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैन यू रिलेट टू दीज 4 चेंजेस? कैन यू रिलेट टू दीज 4 Yes, चेंजेस? ma'am. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक चेंज को एक एक टाइम पे पिक करते हैं। तो सबसे इजी वाले चेंज के साथ पिक करते हैं। तो सपोजिंग चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। सो सपोजिंग मैं एक रैंडम रिएक्शन ले लेती हूँ, लाइक A कन्वर्ट्स टू B, एंड इसका Kc वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे? B square upon A. ठीक है, B square upon A। सपोजिंग एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन जो है, जो तुमने अपने अभी डाउट्स में क्वेश्चन पूछे थे ना, वो क्वेश्चन भी अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो जाएंगे, तो आप वो लोग तुम लोग फिर से ट्राई करना, बिकॉज नाउ यू विल क्लियर दैट कॉन्सेप्ट एज वेल। तो सपोजिंग एट इक्विलिब्रियम आई फाउंड दैट इसका जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन था वो 2 था, और इसका 4 मोल्स पर लीटर था। सो टेल मी Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा Kc का वैल्यू? 8 यूनिट्स बोलो। moles per liter. फाइन, वेरी गुड। नाउ इफ वी डू विद दिस पार्ट, मतलब ये हमारा हो गया। तो टेल मी अब हम लोग मतलब हमें कंसंट्रेशन चेंज करनी है टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, किसकी कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं? मैंने तो रिएक्टेंट किया प्रोडक्ट की। यस, सो ईदर यू कैन ऐड रिएक्टेंट्स, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर हमने रिएक्टेंट ऐड करे तो खुद से सोच के बताओ, अब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि जो तुमने एक्स्ट्रा रिएक्टेंट्स डाले हैं वो कंज्यूम हो जाए? It will Forward. try, yes, Forward it direction. will try to consume the reactants. करेगा कि नहीं? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 मोल एक्स्ट्रा डाल दिया, A की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया, तो यहाँ पे Kc निकालोगे या Q निकालोगे? What will you calculate? Q, क्योंकि अब मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। So check it yourself. Now my value is 16/3. 4 for the 16. हाँ, so check it. Is it less than Kc or greater than Kc? This Q value is less than Kc. So didn't I tell you? क्या करेगा? तुमने reactants डाले हैं, तो it will move in which direction? Yes. Forward direction. Yes. So if you add reactants, reaction किधर move करेगी? जो तुमने डाला है उसको खाने की कोशिश करेगी ना, तो it will move in which direction? Forward direction. Similarly, आप दूसरी चीज क्या डाल सकते हो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा? Product. यस, तुम प्रोडक्ट्स डाल दो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए। सो अब वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की कोशिश करेगी क्योंकि वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बोलो किस डायरेक्शन में मूव करेगी ताकि प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो जाए? Backward direction. Yes, Backward direction. moves in backward direction। तो जिनको लॉजिकली समझ में आ रहा है तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। जिनको मैथमेटिकली समझ में आता है तो वो लोग फिर से कर सकते हैं। मैंने इक्विलिब्रियम पे डिस्टर्ब कर दिया एंड सपोजिंग मैंने B का अमाउंट बढ़ा दिया, आई एम एडिंग, तो हमने सपोजिंग 5 कर दिया। तो अब Q देखो कितना हो जाएगा, 25/2। चेक इट योरसेल्फ, दिस इज 12.5। Isn't it greater than Kc? That means कम कैसे होगा? हम क्या करें, न्यूमरेटर को कम करें, मतलब प्रोडक्ट को कम करें, रिएक्टेंट को बढ़ाएं, तो जो है वैल्यू जो है 8 या इक्विलिब्रियम पे अचीव हो जाएगी। सो टेल मी योरसेल्फ, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? क्या करना पड़ेगा? इट विल ट्राई टू कंज्यूम होम, किसको कंज्यूम? प्रोडक्ट। और कब कंज्यूम? अगर प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होगा? Backward. Backward. Can you relate to this thing? Very easy,
मतलब रिएक्टेंट डालोगे तो ऑब्वियसली बात है फॉरवर्ड मूव करेगी, प्रोडक्ट डालोगे तो किस तरफ मूव करेगी? बैकवर्ड। Backward. Easy enough to understand? Easy enough to understand? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ शिफ्टिंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन से हमारा मतलब है रेट बढ़ना किसी डायरेक्शन में, ये इसका ये मतलब होता है ना? यस, क्योंकि एक्चुअल में तो दोनों ही डायरेक्शंस में मूव कर रही होती है, मतलब दैट इज लॉजिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे तो दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, बट ये थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वापस से इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए, वो थोड़ी देर के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट जो है बैकवर्ड से बढ़ जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो मतलब देखो अब इसी कॉन्सेप्ट को जो तुम क्वेश्चन सॉल्विंग में कर रहे थे उसमें कैसे करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने को बोला जाता है कि हमें एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिला, इसमें 2 मोल्स ऑफ ए थे और 4 मोल्स ऑफ बी था, हमने केसी वैल्यूज से निकाल लिया। अब उस क्वेश्चन में सपोजिंग ऐसे बोला जाता है कि सपोजिंग 1 मोल ऑफ ए इज इंट्रोड्यूस्ड, तो 1 मोल ऑफ ए इंट्रोड्यूस मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, मतलब फिर से जब नया इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जब नया इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो हम लोग क्या सॉरी दिस इज देयर, जब न्यू इक्विलिब्रियम विल बी अचीव तो 3 मोल्स में से कुछ ना कुछ कंज्यूम हो चुके होंगे। एट न्यू इक्विलिब्रियम 3 मोल्स रहेंगे या इट विल, बिकॉज द रिएक्शन इज, तुमने खुद से चेक कर लिया, द रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो टेल मी 3 मोल्स रहेंगे या इट विल बी कंज्यूम्ड? Some will be consumed. Some will be consumed. Consumed. Supposing I say it is X moles are consumed. Okay, and this will, तो ये कितना बनेगा 4 plus, if X moles are consumed to attain the new equilibrium, 4 plus 2X. So again K का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा जैसा कि तुमने बताया, it was going to be Kc value will be constant. तो can you find the value of X? सॉल्व कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे अभी? यस मैम। ठीक है, और तुम्हें याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, तो नेगेटिव क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन अज्यूम किया, x का डायरेक्शन रॉन्ग चूज कर ली थी। यस, जैसे कि अगर यहाँ पर सेम वे में क्वेश्चन को अगर ये बोला जाता है 1 मोल ऑफ b इज इंट्रोड्यूस, तो तुम्हें समझ में आ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्विंग करते टाइम, कि x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब जो भी हमने डायरेक्शन अज्यूम करी है दैट इज करेक्ट, ठीक है। बट अगर हमारी x की वैल्यू सॉल्व करने पर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर गलत नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? Direction is reversed. यस, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो आप खुद से देखो क्या हो जाता, अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो खुद से नहीं आ जाता 4 minus 2x हो जाता, ठीक है, एंड यहाँ पे 3 plus x हो जाएगा। तो ये क्या नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? टेल मी योरसेल्फ, b का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और a का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? रिएक्शन Backward direction. Backward is more than तो forward. डरना मत अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है जिसमें x का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, मतलब क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम नहीं है, ओनली द थिंग इज इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड जनरली बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी कि हम रिएक्टेंट को माइनस कर देते हैं प्रोडक्ट को x, क्योंकि हमें बचपन से आदत पड़ी है ना रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करने की, Forward. फॉरवर्ड। तो जनरली हम मतलब बाय डिफॉल्ट भी तुमने 50 क्वेश्चंस किए होंगे तो हर में ऐसे ही किया होगा, वो सॉल्व हो रहे होंगे। बट इन केस कभी ऐसा आ जाएगा तो अब डरोगे तो नहीं, ओनली द थिंग इज आई अज्यूम्ड इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड बट एक्चुअली इट इज मूविंग इन बैकवर्ड, इतना सा चेंज होगा, ठीक है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन समझ में आया। रिएक्टेंट डालोगे तो उसको कंज्यूम करेगा, कैसे कंज्यूम कर पाएगा, किस डायरेक्शन में मूव करे, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? Forward. और अगर प्रोडक्ट डालेंगे तो किस डायरेक्शन में कंज्यूम कर पाएगा?
Backward. बस Backward. कर लो, ठीक है. So is the change in concentration clear for now? Yes, ma'am. ठीक है. So now let us move to the next point, that is अगर हम लोग create करें changes in temperature. Changes in temperature. तो tell me temperature dependent reactions कितनी टाइप की होती है? टेम्परेचर दो टाइप की, कौन कौन सी? एक्सोथर्मिक एंड Endothermic and So exothermic. temperature dependent reactions are of two types. Now supposing I take endothermic reaction. Now what is an endothermic reaction? The reactions in which energy is absorbed for the progression of the reaction. Yes. So in which there is, ठीक है, इसमें energy is absorbed during the reaction. ठीक है. So tell me, heat is acting as a reactant or a product? Heat is acting as a reactant or a product? reactant. Yes, it is acting as a reactant only. तो tell me, अगर हम temperature increase करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? Reactant बढ़ रहा है. Reactant बढ़ रहा है तो reaction किस direction में जाएगी? Forward direction. और अगर हम लोग temperature decrease कर दें तो Backward direction में reaction होगी. बस सिंपल सा लॉजिक लगा, जैसे कंसंट्रेशन में यूज किया था, सेम लॉजिक को यूज कर सकते हैं. सेम लॉजिक को यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी. Please can you repeat what you said? Yes, if it is an endotherm, what is an endothermic reaction? मैम इसमें temperature heat loss होता है during the chemical reaction. Endothermic, not exothermic. Endo Sorry means ma'am, देना. gain. हाँ, तो जिसमें हीट देते हैं, तो now it is acting as what? A reactant or a product? Heat is acting as a reactant or a product? Heat is acting as a reactant or a product? हाँ. Reactant. Okay. Endothermic reactions are those reactions where heat is supplied. Okay, या फिर ऐसे हमने किया था, delta H is equal to positive, where delta H stands for what? Heat of the reaction. ये तुमने ionization potential electron affinity में किया था, याद आया? Yes ma'am, got it. ठीक है. So now just like this, that means हम कोई reactant है, हम heat provide कर रहे हैं, that means it is acting as a reactant or a product? Reactant. Reactant. So tell me, if I am increasing the heat or I am increasing the temperature, that means what? You are supplying heat or you are removing heat? Supply reactants बढ़ा रहे हैं. Yes, reactant बढ़ाते हैं तो reaction किस direction में move करती है? Forward direction. And if I decrease the heat, decrease the temperature, that means cooling कर दें, तो अब बोलो क्या होने वाला है? Backward direction. Yes. ठीक है, मतलब एक तरीके से तुम रिएक्टेंट्स को रिमूव कर रहे हो तो वो और रिएक्टेंट्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा. सो कैसे रिएक्टेंट्स को प्रोड्यूस कर पाएगा और ज्यादा? Backward direction. अब क्लियर हुआ? Yes ma'am, thank you.